नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत टाइम। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। And you did a fantabulous job, sir. सब सही हो गया. आप देख रहे हैं यहाँ पे response और as I said, if this does not get people back to the theaters, I don't know what will. तो Rajamouli sir, this one's for you. You know, not from the business perspective or not from a filmmaker's perspective. We know how passionate you are about your movies, how much you love your movies. So for you, what kind of emotions were going through, you know, in the last 2 years? What were you going through? Like, what was on your mind? I think like behind this poster, blank screen, because we never anticipated, we never knew, we never even imagined something like this could happen, and it happened. And but very frankly speaking, I was not down for a very long time. It was something new that was happening around, and there is an opportunity if you look in every. Okay, I won't say disruption, I'll say in every interruption there is an opportunity to look forward for. Right. You know, so there was time to spend with my family, with friends, and relook at your career. Right. You know, what are you doing until now? What do you want to do further? You know, there's so much of time to think about things that we usually don't. Right? We keep running, and we don't have a pause to evaluate. So this is a fantastic opportunity for me to evaluate, and I had a blast of a time. Great. That's how you should always look at it. And as sir said, career पे relook करने का वक्त मिला. आप लोग सोच लो क्या कर रहे हो. Rajamouli sir is saying, I had to relook. You know, I was thinking और क्या कर सकता हूँ and all that. Okay. So talking about this collaboration, this is the biggest it can ever get. So please tell us something about this. How did it happen? Like, कैसे हुआ ये? No, first thing I want to take the words from you itself. I don't want to call it a collaboration. I want to call it a dosti. Fantastic. It's a fantastic dosti, sir. Absolutely, sir. Likewise, yeah. sir. And like RRR style, the dosti goes like this. Yes. Yeah. That is what it is. Friendship, and like you said, it happened because of the pandemic. Otherwise, it might not have happened, right? So we had a time to look at, and fantastic people came around from PVR, from our team. They sat together and thought. So once this happened before the pandemic, I mean, before the second lockdown, after the first lockdown, it happened, and they were discussing how once we get back on track, how can we make this big, right? And I guess it was Varun who came up with the idea of PVRRR. Everyone thought it was fantastic. Shalu said it was fantastic, and like all of us very very excited. But there was corporate documentation, legal documentation. But the thing is, he was very excited. I was very excited, and they just went through this process, and here we are. I'm very very excited. That's the only word that's coming to my mind again and again. Excitement. Right. No, that's what I'm. That's what it is. Superb, sir. Superb. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on for that excitement. We all are looking forward to this and many more blockbusters, sir से, PVR से. And now it's over to you guys. आप लोग के जो भी सवाल हैं, आप लोग पूछ सकते हैं. इतने प्यार में है टीजर में. जी. How can I say it is? There is no gender, sir. Everyone is a hero. Even Alia is a hero in this film, and like again, I'm coming to the same point again and again. It is about the bringing the friendship of those 4 heroes that you see on the screen. Hello, sir. Hello. Yeah, I'm Ritunjay from Pop Diaries. Nice to see that teaser and all. It's blockbuster already. And here we're talking about the biggest collaboration in world cinema. But how was the collaboration with so many superstars? It was great. I mean, frankly, I knew them before. I worked with them before. And I knew Ajay sir because he did Son of Sardar, which was a remake of my Telugu film, and I met him during the promotions of my film Makki. He was very gracious to do the honors of releasing the trailer back then. So I had
association with them. But again, I believe it's not just because of me or it's because of my friendship that things like this happen. When you have a fantastic script, and when the actors listen to the script and they say, when they see themselves a part of the, as the character in the script, then you don't need your names, you don't need your connections, you don't need your friendships, you know. If the character is so well written, if the script is so well written, things will fall into place. That's what happened with RRR. Hi, Rajamouli sir. Justin here from PTI, towards your left here. Left. Yeah. Towards your right, sorry. Okay. Yeah, you know, RRR is of course one of the most anticipated films for Indian cinema. A lot of people are putting their hopes on the film to revive the theatrical business. But in the Hindi sector, it's going to clash with Mr. Bhansali's big, massive film. Do you think, how do you look at the clash first? And do you think in the post-COVID times when the business is so important for everyone, will this hamper? No, not at all. I always believed if the films are good, it's not just 2 films. If 2 films, 3 films, 4 films, even 4 films come together, if the films are good, the people are going to come and watch all the films. It happened again and again. There are, if you look back at the history, there are multiple instances that happened. And because of the COVID times, because so many, everything was shut down for 1.5 year, a bottleneck is expected. Everyone expects a bottleneck, but if your films are good, if the content in your film is good, it doesn't matter how many films come together, people are going to come and watch. It will be like they'll be spoiled for choice. Hello Rajamouli sir, this is Ravi Jain from ABP News, towards your right. Hi sir, this film was supposed to release earlier and I want to know, were you anxious when the film was not releasing on time and there was pandemic and the world was disrupted due to pandemic? So were you anxious about it, ki when is it going to release, because this is such a big budget film? And also the seating arrangements have not changed, like it's still 50% people only can watch the film in any screen. So do you think it is going to affect your film that way? Like I was saying before, when pandemic happened, it is not just a problem of my film. It's not just a problem of the film field itself. It's a problem of entire humanity, right? So it is, there is no scope or there is no, chance of sitting and crying of, oh, what's going to happen to me? What's going to happen to my film? No, this is the situation. This is what it is. And how do you make the most out of it? No, that's how we started working. That's what Ajay sir was saying just before. That's the situation. That's what we have in front of us. And how do we overcome those obstacles? How do we make the most of it? How do we make it exciting for the people to come and watch it again and again? All right. So you have to make your film much better. If you had a film in your hand which made people come and watch once, now make it more exciting so the people will come and watch it twice, so that you get your money back. So that's the only thing that we can do. Make your product better and better, and from PVR side, make the experience better and better. That's what it is. That's how I look at it. Hi, one more question, sir. Earlier you have made so many films, and majorly you have made films with South stars, like majorly with Telugu stars. How do you thought of casting Ajay Devgan in such an important role and Alia Bhatt for this film? I stopped looking actors as South or North or Hindi or Tamil or Kannada. I stopped looking at stars like that. Even before that, I stopped looking at the audiences like Hindi, Tamil, Bengali, Malayalam or like that. I just look at them as Indian audience. That I've been doing for a long time. Yeah. And once I write down the script, I look at, okay, which actor has the capability or which actor will look best in this part for this character. If he's a Malayali, he's a Malayali. If he's a Bengali, he's a Bengali. If he's a Marathi, he's a Marathi. I just approach the actor and say, see, this is the script that I have. This is the role that I have. Would you be interested? Right? Of course, I can't deny the fact Bahubali behind me will help a lot. I can't deny the fact, but I don't go with the visiting card of Bahubali. I go with the visiting card of my script and my characterizations, and that's what helped me so long. Thank you. Hi, sir. Hello, sir. Here.
Yeah. Okay. Yeah, this is Nikita from India Forum. So my question is, how difficult or easy was the decision to release the films in theaters and not on OTT? Because we were not sure कि ये pandemic कब तक चलेगा, कब खत्म होगा. So there would be a dilemma to release it in the theaters or OTT. तो आपके लिए decision कितना difficult था या कितना easy था? It was very, very easy. I don't make, I make films only for theaters. No, I make films for audiences to come together, watch the film together, the experiences that I have learned from my childhood till date, and the way I operate, the way my mind thinks is like for the audiences sitting in one closed space, a large number of audience sitting in one closed space and experiencing the emotions that I show on screen. That's how my mind works. So that's the only way I look at it. So it is quite easy for me. There is no dilemma in that. Can I add something to that? Before the pandemic, the journey of any content has always been theatrical, and then it goes to other platforms. Because theatrical sets a quantitative and a qualitative benchmark for any movie. So you get to know how it did and how was the word of mouth. Then the other journey starts happening of monetizing it on other platforms. So theatrical, not because I run cinemas, still represents good 60 to 70% of movie collections, revenues, and it's an active experience. It's not a passive experience. So you are going out of your comfort zone and getting to a cinema, car parking, and then watching a movie. And when Rajamouli sir makes a movie like this, he appreciates the fact that people are getting out of their homes. So therefore, it has to be something which is made for the big screen. So I think OTT theatrical is not a either an or thing. They've always coexisted. Obviously, the volume became very high because cinemas were shut and accentuated. But post the pandemic, I hope we are in post-pandemic and it's become an endemic, it'll again coexist. Very happily, they'll coexist. There is no either or situation at all. Absolutely, I second that. If you remember in the 90s when the Star Network came to India, and everyone was saying this is the end of cinemas. No, because the people will be spoiled for choice. They have so many films that are going to run on television. The films are going to shut forever. But no, it had its own audience. Television industry exists. It does very well. The film industry and the theater business exists as well. It continues to do well. Of course, every medium has its own challenges. And all of them coexist. The same way the OTT is also going to coexist along with the television industry and the film industry. Rajamouli sir, Hi, sir. a small interjection with your permission. Mr. Bijli, there was this earlier question about 50% restriction. Right. If you could address it because there's confusion around that. Yeah, there is confusion. This only that most of the states have announced 100% now. So even Delhi announced yesterday, Gujarat announced yesterday, Telangana has been 100%. And it's a matter of time where by the time, by the way, this movie comes 7 January, God willing, I think everything will be at 100%. Rajamouli sir, hi, this side. Hi. So this is Siddhi from Asianet News. My question is, for the first time, you collaborated like with Alia, Junior NTR, and different celebrities. We have seen celebrities from the Hindi cinema and the South coming together. So how was your experience working with them? And what were the challenges that you faced, during the shooting of the film, like knowing that the pandemic was there as well? Working with the stars has been quite easy for me because they are thorough professionals. They know what to do. They learn their lines. They look to the director to do what he wants. Like if I talk about Ajay sir, he was like, he doesn't even go into the caravan. He just sits just outside the peripheral of the shooting area and just sits there looking at me continuously. Just if I just look at him, do you want me, sir? And he comes onto the shooting location. And Alia was like, she was buggering the direction department to get her lines much before, so she can get her lines right, to get her diction right. They were thorough professionals, so I didn't have any kind of difficulty. And Charan and Tarak are my friends, my brothers. I have known them for 15, 20 years now, and there was no difficulty in working with them. Working in the pandemic times, it had its challenges
maintaining the distance in the initial stages of getting back onto the shoot, maintaining the distances, maintaining the masks, making people aware of the protocols, and but like I said, those are the things that you have to do, and you have to do it. That's it. So we just figure out how to go about it, and we go about it. So otherwise, if I had to shoot 20-25 shots in a day, because of all these restrictions, probably I was shooting 15-20 shots a day. That's the only thing. Otherwise, it was fine. Hi, sir. Samina hi. here from Times of India. Hello. Yes, please. Hi. Sir, what excites you and what encourages you to make a period drama? Because it's a very lengthy film also. Be it with Bahubali also, we had to wait to see the second version also. So what excites you the most for that? What excites me most, this is a question I was asked most of the times, and what really excites me is, if you look at it, is finally when my film comes onto the screen, the way the audience react to the emotions that are displayed on the screen, that is what excites me most. That is the reason why I make the films. I just want to see the reactions of the audiences. I want to, I mean, when we write the story, when we are making the film, we have certain expectations of how the audiences are going to react to certain scenes, a certain song or a fight. Just to see it coming true, the realization, yes, we achieved what we wanted to. That is the sole reason, that's the driving point for me to make a film. अजय जी, 2 और सवाल लेंगे हम. जी. अजय जी, जैसा कि सर ने कहा है कि वो डिफरेंशिएट नहीं करते बंगाली या फिर साउथ या किसी को भी, लेकिन अगर आप थिएटर वाइज देखें तो 60% जो थिएटर्स हैं वो साउथ को बिलोंग करते हैं, तो उनमें तो 100% है कि श्योरिटी है कि फुल जाएंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं वहाँ आपका प्रिडिक्शन क्या काम करता है? क्योंकि जैसा हमने देखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है. जो तो आपको क्या लगता है कि जो साउथ के अलावा जो और स्टेट्स हैं वहाँ पर ये फिल्म किस तरह से नहीं, जैसे राजमौली सर ने बोला कि वो इंडियन ऑडियंस को सेग्रीगेट नहीं करती विद इन रीजन्स. वो ऐसी एक स्टोरी कहानी बताना चाहते हैं जो सबके साथ रेजोनेट करे. तो मुझे लगता है सारी पिक्चर, जैसे बाहुबली भी थी, वो भी हर जगह, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इट डिड वेल. And I think by looking at this trailer, he used the word exciting, even I'm got very excited now. I think it will resonate in every single place. And it's also getting dubbed in various languages. एक तो story जो है वो हर जगह resonate करेगी. It's about the Indian freedom struggle and the way he's made it, and he's addressing everybody. तो मुझे लगता है it will do well everywhere. S.S. Garu, welcome to Mumbai. బాగున్నారా? బాగున్నానండి, థ్యాంక్ యూ. Okay, fictional story between two revolutionaries, Charan and Rao, who fought against Britishers and Nizam of Hyderabad. How have you managed to avoid any historical contradiction that usually reps, Luckily, what we did was, usually these things comes when we make a biopic of the heroes. That's the time when people come up with this kind of allegations or whatever. But from the beginning, we are very clear that this is completely fictional. None of the scenes or whatever you see in the film are not actually a part of their actual lives, right? It is like I took the lives of these superheroes, real life superheroes or freedom fighters, Alluri Sita Ramaraja and Komaram Bhim, who belong to the same era, who went out of their homes during the same time, and no one knows what happened to them when they went out of their houses. And after 3-4 years, they came back and they started fighting for the rights of their people in the same modus operandi. Now, that gave me a very big excitement, like what if these two superheroes, these two demigods whom we worship, what if they actually met? What if they exchange their ideas? What if they are friends? They are close friends. What if they fought against each other? All these ideas are like very, very exciting to me. So it's a completely fictional tale. There is no one bit of
real life, real historical facts in the film. It's a completely fictional tale. It's about the friendship between two real superheroes who are freedom fighters. Yeah, that's it about it. हेलो Arguably, अजय जी- after the success अजय of जी- Bahubali, अजय जी SS मेरा नाम आरती सक्सेना है सवाल पहले कौन पूछेगा मैं यहाँ दो पूछूं? बाहुबली बढ़ गए, वाह कमाल हो गया. You want to complete your question? अच्छा तो मेरा सवाल अजय जी से था कि ये जो आरआरआर पीवीआर की जो कोलैबोरेशन है और अनोखी दोस्ती है तो ये सिर्फ इसी फिल्म तक रहेगी कि आगे भी बढ़ेगी? No, it is not a. I don't believe in one-time film deals. I don't believe in that. That's not how I operated. That's not how I worked. If it's a friendship, it's a friendship. Yeah. That's why I'm calling. I don't want to use the word collaboration. I want to use it dosti. And forgive my Hindi. I think it is bijli means thunder or electrifying. It's going to be an electrifying dosti between PVR and RRR for a long time to come. Thank you very much. Thank you. राजामौली जी, I मेरा express यही the same आपसे- sentiment. Thank you. Thank you so राजामौली जी, much. आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने हिंदी इंडस्ट्री में एंट्री की है तो हिंदी बोलने में आपको कितनी तकलीफ हो रही है? No, I can definitely speak Hindi, but I'm not sure about you being here when I start speaking Hindi. That's the अभी गिराई थी ना बिजली, अभी तो गिराई बिजली. क्या बात करते हैं हम? Yeah. One last question we'll take. Yeah, please. Hello. Hi, sir. This is Music. Keyul from Sinistan. Sorry, can you come again, please? Sorry. This is Keyul from Sinistan. As we all know, no matter how much we try to ignore, but we can't forget that the collections of your last films were stupendous. I mean, they broke all the records. So naturally, there is a similar expectation from RRR as well. So how are you looking at this aspect? When we make films, It is the audience who give us the money. So in this aspect, you are the audience. So if you are not going to give me enough money like Bahubali, I'm not going to accept that, okay? Thank you. Thank you. Yeah. Mr. Rajamouli? Yeah, to your left. Okay. Okay, please. You have a penchant of making films for cinema. Everything is larger than life. You even made a fly into a larger than life creature. What primarily drives you to make cinema for that medium? I mean, for example, if we saw the trailer here, it looks like a film which has to be seen here on the big screen for Mr. Bijli to make a lot more money as well. Yeah. In our childhood, going to a cinema was a very, very big thing. We were allowed to go only one film per 1 month, right? And we used to wait so much. For it, and we buy the ticket, we sit in the theater. I come from a very small town, and the theater was in a very bad shape. You can smell cigarette, you can smell all the bad things in a small town theater would give it, but none of it bothered us. I still remember the excitement sitting in the theater the moment the lights shut down. The amount of excitement I get, it never leaves me. Even now, when we are sitting here, when the lights shut off to play the teaser, I still get the same excitement. And I assume all my audiences who come to the theater have the same kind of excitement. I assume that, I believe that. And I don't want that excitement to go down. And that drives me. I want the audience to have if they feel anger in my film, I want them to feel to the fullest. If they feel like laughing, I want them to laugh to the fullest. If they feel wonder, I want them to wonder in the biggest way possible. So that is what makes me make my films. Yeah. Hello. Very soon. See, when I made Bahubali, the film itself, the story itself warranted two parts. In RRR, the whole story comes within one film. I don't believe in making a film in 1 part, 2 part, 3 part for
for the marketing, for the business. It doesn't work. It's a dishonest way of making films. I don't want to make the films that way. And when the teaser is going to come, the marketing team, did you make a we will announce it today. This evening itself, we are going to announce when the teaser is going to be made public. Hello, sir. Rajmouli. And I want to say one important thing when Mr. Sorry, sir. Kamal was talking. He said it is an honor that I be present in the cinemas in the auspicious day. Sir, the honor is mine. Good to see you, Aftab. Thank you. बहुत कुछ हो रहा है. Please tell us. और special ops is around the corner. Yes. बहुत positive vibes just कह रहा हूँ. You can say something. You know, it's exciting. Promotion पूरी ज़ोरों शोरों से चालू है. So I've just finished promoting. Lots more to go. 12 नवंबर को रिलीज़ है, तो obviously excited है. और बहुत कुछ काम करना बाकी है वैसे. So कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब स्पेशल ऑप जैसा एक बहुत फेमस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनते हैं. और if you can throw some light on the कैरेक्टर I can't throw light, but I can definitely tell you एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि रॉ पर है, तो ऑब्वियसली एक इंटेंसिटी वहीं इनहेरेंटली आ जाती है. बट एक ऐसी सीरीज़ है जिन्होंने लोगों ने 2020 में इतना सराहा, इतना देखा है, तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और यही कोशिश है कि इस फ्रेंचाइज को हम जितना हो सके आगे लेके चले. आपने जैसे कहा कि बता नहीं सकते, क्या सरप्राइज पैकेज? डिफ़िकल्ट है ये बताना, ये मुश्किल है क्योंकि सारी चीज़ें जो है शो में भी क्लासिफाइड है, तो जब शो निकलेगी ऑन एयर 12 नवंबर को तो सारी चीज़ें पता चल जाएगा. नीरज पांडे टिकी मेनन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? अमेजिंग है. इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम आई वुड से. चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हर बार काम करूँ. नीरज सर इज़ अ जीनियस, एज यू नो. वो बहुत अच्छे, उन्होंने इस तरह की फिल्मों में या सारी तरह की फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया हुआ है. So for an actor, it's a pleasure to work with someone as clear and as accomplished as Neeraj sir. And KK sir तो मतलब जितना कहूँ कम है क्योंकि वो ऐसे एक्टर है जो मतलब मैं अगर कहूँ तो it doesn't do justice to his talent, but उनके साथ काम करने का अनुभव has been amazing, absolutely amazing. Recently अभी what we know about South में जो फिल्म है, मैं उसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ. कोटी गोबा. 40 करोड़ 4 दिन में कमाना, और जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, जहाँ थिएटर को लेके बड़ी पैंडेमिक है, इक्विपमेंसी कम है, ये इस सक्सेस के ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि थिएटर में रिलीज़ होना इस पैंडेमिक के दौरान वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है. सो एक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये एक इंडिकेशन है कि लोग कितना सिनेमा में जाकर फिल्म देखना चाहते हैं, यू नो. और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रेंड वहाँ पर है यहाँ पर भी हो और हमारी फिल्में चले, लोग दर्शक पूरे सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के साथ थिएटर आए और फिल्मों और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई एम माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये जो सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है, जो दौर है, वो वापस आ जाए और लोग इसे बड़ी तादाद में देखें. नीरज पांडे जी की लोकेशन हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट कंट्री चूज करते हैं. शूटिंग के दौरान मैंने देखा स्पेशल. आप बताइए आपको कौन सी कंट्री बहुत पसंद आई एंड कहाँ पर शूटिंग का बहुत ही स्पेशल ऑप्स की मैं बात. स्पेशल ऑफ 1.5 हम लोगों ने इंडिया, मॉरिशस और यूक्रेन में शूट किया था. स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी तो जाहिर सी बात है कि हमें बाहर जाके शूट करना पड़ा क्योंकि जो रॉ होता है वो सिर्फ इंडिया में नहीं होता, उनके एजेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं. तो जैसे कि कहानी आगे चलती आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने इस जगह में क्यों शूट किया. तो वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी और शो का प्री रिक्वायरमेंट था उसका स्केल, और स्केल पर वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शूट इन दोज कंट्रीज स्केल इस्टेब्लिश करने के लिए. दिवाली की क्या तैयारियां हैं? दिवाली यही कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल ऑप्स लोगों के सामने पेश कर रहे हैं. यही उम्मीद है कि सब लोग एक हैप्पी, सेफ और प्रॉस्पेरस दिवाली. सेफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड. घर में रहें, घर वालों से मिले, लेकिन विद सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि हमें लगता है कि पूरा ये कोविड जा चुका है, बट यू डोंट वांट टू बी टेकिंग एनी रिस्क्स. आई वुड से हैव अ सेफ, हैप्पी, प्रॉस्पेरस दिवाली. थैंक यू सो मच. आप बिग बॉस में गए थे एंड आप प्रतीक को सपोर्ट कर रहे थे एंड उसी बीच आपसे मुंह से निकल गया हु इज जय. तो क्या आप सच में जय को नहीं जानते हो? नहीं, मैंने हु इज जय मतलब उस कंटेंट में
उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था, कुछ अलग वे में बोला था, बट लोगों ने वो गलत ले लिया। तो हाँ, मुझे लोगों वो- में बहुत गलत फैमिली पहुंच रही लोगों है। में, हाँ, लोगों ने बहुत गलत वे में उसे ले लिया, हाँ। बट मुझे अभी जस्टिफाई भी नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में 1000 तरीके के लोग हैं जो अलग अलग सोचेंगे। अब मैं हर किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकती, मुझे पता है मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, सो दैट्स व्हाट्स मैटर फॉर मी। ओके, बट आप जानते हो ना उनको? ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, रिप्लाई देने के लिए थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। अरे बस कर। बाय निकी। हेलो सर। सर एक विजुअल्स। क्या हो रहा है? सर एक खड़े होके दे दीजिए ना। कैसा चल रहा है सर आपका प्रोजेक्ट? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अपकमिंग मूवीज? ये उसी की डबिंग पे। विच? रॉकेट गैंग। थैंक यू सर। हेलो सर। सर एक विजुअल्स। क्या हो रहा है? सर एक खड़े होके दे दीजिए ना। कैसा चल रहा है सर आपका प्रोजेक्ट? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अपकमिंग मूवीज? ये उसी की डबिंग पे। विच? रॉकेट गैंग। थैंक यू सर। One second. Ma'am, wait. Who's that? Sorry? Hi, who's that? Shadma. Hi. Hi, Shadma. Hello. 1 second. एक minute. Just hold. Nikita, just hold. Look here also. Mask. Can you please? One second. Yeah, sure. एक मिनट, थोड़ा वाइट। वो दे दे मुझे। Where is that phone? फोन क्या था? जेब में। उसके जेब में। Yeah, I got it.
सो निकिता कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज ही दी बुक रिलीज हो चुकी है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है दी बुक के रिलीज? जी ऑनेस्टली मैंने बहुत थोड़ा सा देखा है, मैं अभी अभी डबिंग से बाहर आई हूँ एंड जितना मैं फ़ोन पे देख रही हूँ, माई फ़ोन हैज़ बिन बजिंग अ लॉट, तो एटलीस्ट द काइंड ऑफ फीडबैक आई एम गेटिंग इज़ वेरी पॉजिटिव एज ऑफ नाउ. So I can't wait to check what all people are saying, but I'm just hoping everybody is liking it. और आज यहाँ डबिंग के लिए आई हैं, जी. मतलब दूसरी प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हो चुकी है, कुछ जी. बताना चाहेंगी? जी ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर रॉकेट गैंग की डबिंग के लिए आई हूँ, जो ये फिल्म है बॉस्को मार्टिस बना रहे हैं, तो उसकी जो शूटिंग है ख़त्म हो चुकी है एंड वी आर जस्ट इन पोस्ट प्रोडक्शन राइट नाउ, तो उसी के काम के लिए आई हूँ. Besides this, any other project? आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट, आई एम सो सॉरी, बट जल्दी आपको बताऊंगी. बुक की बात की जाए तो फैमिली ने देखा आपके अभी तक के? जी मेरी फैमिली ने देख लिया, क्योंकि रात को ही बाहर आ गई थी. हम लोग एक्चुअली टीवी से चिपके हुए बैठे हुए थे, जैसे 12 बजे रिलीज़ हुई हमने देखी थी फिल्म एंड माई फैमिली सॉ इट. दे हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट. आई एम रियली होपिंग एवरीबडी एल्स ऑल्सो लव्स इट. वेल लास्टली आर्यन खान को फाइनली बेल मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी आई रियली होप, आई मीन आर entire judiciary process kind of speeds up like this. We need speeder justice, but at the same time I'm really glad and I'm really happy for Shah Rukh because I've always been a fan of his. So just glad that he can finally celebrate his Diwali. Right. And दिवाली की बात की है तो दिवाली आ रही है. How are your planning going on and क्या कुछ करने वाली हैं? जी मैं घर जाने वाली हूँ दिवाली के लिए. I'm going to be with my family. I prefer Diwali celebrating at home. I don't like going outside and being out. So that's how it's going to be. Just lots of food, lots of colors, lots of lights. That's what Diwali is going to be. Shopping तो actually मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया. मैं ज़्यादा घुसती नहीं हूँ शॉपिंग में. So I'm just relying कि जो भी खरीदना है वो लोग करके रखेंगे. Okay, lastly एक दिवाली wish. I just wish all of you all a very happy Diwali. Please celebrate a safe one. Stay home as much as possible and have a great Diwali. Thank you. Thank you. Thank you. Look here. Thank you so much. Thank you, Simran. Thank you. Bye. I'm going to run. I'm running. Sure. I know. हेलो मैम. मैम सर रुकिए ना मैम. मैम सर रुकिए ना मैम. एक मिनट. मैम बता थोड़ा सा. दो बैलेंस थोड़ा ये हो गया. कहाँ गया? इधर आ आपको एक मिनट ऑडियो लेवल बराबर है ना? हाँ. रेडी? यहाँ पर बंदोबस्त किए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है कि ऐसा की जा रही है यहाँ पर और काफ़ी ट्रैफिक की सुविधा होगी, तमाम भीड़ इकट्ठा होगी, जिसे ध्यान में रखकर. तो सर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? भारती और हर्ष के साथ फिर से गेम्स खेलने का मौका मिल रहा है. मैं पहली बार आया हूँ इनके शो पे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है. फन का शो है और हर्ष और भारती बहुत ही फन लविंग आए हैं और फन करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं. सबको पता है उनके साथ काम करना मतलब हंसते रहना, तो वही हो रहा है सुबह से जब से आए हैं. अब आप जा रहे हो अंदर कि आप गेम खेल के आए हो? नहीं, अभी तो मतलब जा रहे हैं. आपके साथ कंपटीशन में कौन है, आपको पता है? पता नहीं कंपटीशन में कोई है कि नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कोई कंपटीशन के लिए नहीं आया हूँ. मैं सच में यहाँ पे मस्ती करने आया हूँ और मैं मस्ती करके जाऊँगा. आपको क्या लगता है और 2 दिन हो चुके थे, कौन से गेम्स होंगे, क्या होगा? मैंने जहाँ तक इनका शो देखा है, जहाँ तक गेस किया है, गेम शो वैसे ही होंगे, फन वाले. कहीं से गिरो, कहीं से पढ़ो, कहीं से खाना मंगा लो.
कहीं मतलब ऐसा सही है, पानी में गिरो या फिर कोई स्पंज का होगा, कुछ ऐसा सही होगा मस्ती वाला। अच्छा, इसके अलावा आपके कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहोगे? वो बता नहीं सकते, आपको पता ही है, लेकिन आने वाला है, जल्द देखना आप। ओके, सर आज की आपकी दिवाली की क्या प्लान है? दिवाली आ रही है। दिवाली का तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि दिवाली में शायद मैं अपने घर पे ही रहूँगा, घर की साफ सफाई करूँगा और अपने कुछ दोस्तों से मिलूंगा, लेकिन छठ पूजा मैं शायद कर दूँगा। एक दिवाली विश दे दो आपके फैंस। हेलो एवरीवन, विशिंग यू ऑल एवरीवन, इंडिया यूएसए मुझे लगा। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। इस बार दिवाली सेफ मनाएं, अच्छे से मनाएं, खुशियों को अपने घर पे बुलाएं और अपने घर से कम बाहर जाएं। थैंक यू। देखेगा ओके, सो भारती का शो है तो कितना मज़ा आया ये तो पूछने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली भारती है, हर्ष है, तो एंजॉय तो किया ही होगा। करेक्ट। तो यहाँ भारती का नाम आ जाता है मतलब समझो फुल ऑन मस्ती। क्या गेम्स खेले और कितना एंजॉय किया? गेम्स हमने वाटर के दोनों के पानी वाले ही थे हमारे स्पोर्ट्स। एक तो फिसल पट्टी वाला, मैं तो 2 सीढ़ी नहीं चढ़ पाया। आई थिंक तो बहुत मेहनत रोहित ने बहुत मेहनत की है, तो मेरे को लगा कि भाई वो सीढ़ी तो नहीं चढ़ पा रहा, वो क्योंकि स्लिपरी किया हुआ, पूरा साबुन वाबुन फेंका हुआ, उस पर कैसे चढ़ो, और नंगे पाँव भी होते होते, चढ़ तो पाए नहीं, तो मैं खींचने में लगा हुआ था दूसरी टीम को। मैं जाके कोशिश बहुत की बट नहीं। पहले वाले में जीते ना, एक में जीते एक में हारे हैं, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। 2 ही गेम्स खेले आप लोगों ने जी। आप दोनों का 2 गेम्स में कौन सा फेवरेट वाला था? जिसमें जीते वही वाला पहले वाला। आई थिंक उसमें क्या बोलते हैं उसको, लटक के आते हैं, वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो तार पे लटक के आए थे हम, हार्नेस नहीं, कुछ और कहते हैं, जो भी था अच्छा था। अब जीत गए। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में कम्पीट किया है या साथ मिलकर खेला? पहले वाले में कम्पीट किया था। कम्पीट किया था, हाँ, टीम नहीं थी हम। दूसरे वाले में टीम। ओके, इसके अलावा दिवाली आ रही है, क्या प्लान्स है दिवाली के? दिवाली में मैं जा रहा हूँ गुड़गांव अपने पेरेंट्स के पास। मैं भी जा रहा हूँ अपने घर दिल्ली। सो दिवाली के वो प्लान्स हैं। बॉम्बे में कई बार दिवाली मनाई है, पेरेंट्स से आते हैं, बट इस बार मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो शॉपिंग हो गई? ना क्या करनी है, अभी बाकी है, अभी सभी प्लान तो आए खेलने के लिए। हाँ, जीत के जा रहे हैं, खेलेंगे कॉइन्स, डॉलर में शॉपिंग डॉलर कमा के लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिवाली विश। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, भारती और हर्ष है, तो आपको कितना मज़ा आया वो बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये गेम शो है और हम हमेशा डेली सोप करें, शूट करें, तो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, और यहाँ पे आके हमने बहुत मस्ती की, वाटर गेम्स खेले, स्लाइड्स गेम्स खेले, मैं डूबी, गिरी, पड़ी, टूटी फूटी, पर बहुत मज़ा आया। वेल, कंटिन्यूअसली शूट करना काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस बूस्टर रहा। एग्जैक्टली ऐसा लगा, नए लोग एंड आप लोगों से भी मिली, और उसके बाद नया सेट, सब कुछ बहुत डिफरेंट था, मतलब जो हम रोज़ करते हैं, तो आई रियली एंजॉयड अ लॉट। और आज तो कंपटीशन भी खतरों की टीम के साथ में था, पर आई वाज लकी कि मुझे खतरों के कंटेस्टेंट के साथ ही पेयर अप किया। पहले वाला, आई थिंक उसमें क्या बोलते हैं उसको, लटक के आते हैं, वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो तार पे लटक के आए थे हम, हार्नेस नहीं, कुछ और कहते हैं, जो भी था अच्छा था। अब जीत गए। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में कम्पीट किया है या साथ मिलकर खेला? पहले वाले में कम्पीट किया था। कम्पीट किया था, हाँ, टीम नहीं थी हम। दूसरे वाले में टीम। ओके, इसके अलावा दिवाली आ रही है, क्या प्लान्स है दिवाली के? दिवाली में मैं जा रहा हूँ गुड़गांव अपने पेरेंट्स के पास। मैं भी जा रहा हूँ अपने घर दिल्ली। सो दिवाली के वो प्लान्स हैं। बॉम्बे में कई बार दिवाली मनाई है, पेरेंट्स से आते हैं, बट इस बार मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो शॉपिंग हो गई? ना क्या करनी है, अभी बाकी है, अभी सभी प्लान तो आए खेलने के लिए। हाँ, जीत के जा रहे हैं, खेलेंगे कॉइन्स, डॉलर में शॉपिंग डॉलर कमा के लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिवाली विश। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, भारती और हर्ष है, तो आपको कितना मज़ा आया वो बताइए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ये गेम शो है और हम हमेशा डेली सोप करें, शूट करें, तो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। और यहाँ पे आके हमने बहुत बहुत मस्ती की, वाटर गेम्स खेले, स्लाइड्स गेम्स खेले, मैं डूबी, गिरी, पड़ी, टूटी फूटी, पर बहुत मज़ा आया। वेल कंटिन्यूअसली शूट करना काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस बूस्टर रहा आपके लिए। एग्जैक्टली ऐसा लगा नए लोग एंड आप लोगों से भी मिली, और उसके बाद नया सेट, सब कुछ बहुत डिफरेंट था, मतलब जो हम रोज़ करते हैं, तो आई रियली एन्जॉयड अ लॉट। और आज तो कंपटीशन भी खतरों की टीम के साथ में था, पर आई वाज लकी कि मुझे खतरों के कंटेस्टेंट के साथ ही पेयर अप किया। अच्छा, तो मुझे कंपटीशन नहीं फील हुआ। कितने गेम्स खेले आपके साथ मिलकर? हमने टोटल 2 गेम्स खेले, एक गेम खेलने वाले थे पर हम उसमें डर गए सारे लड़कियाँ, क्योंकि हमें लटकना था, तो हमने वो अवॉइड कर दिया खेलने से पहले। और कितने जीते फिर आप? हमने 2 खेला है और मैं 1 जीती। तो भीग कर भी बाहर आई थी? हाँ, भीग कर बाहर। साबुन के पानी में फिसलते अरे ऊपर से जब स्लाइड करते हैं तो ब्रेक नहीं लगा सकते उसमें, और सीधा पानी में, और पानी में ऐसे जा रहे पूरा पानी वानी पी के फिर वापस आई हूँ मैं ऊपर। ओके, बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? बिग बॉस मैं हर साल मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। आई लव वॉचिंग बिग बॉस, मुझे बहुत मज़ा आता है बिग बॉस, और इस बार भी मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो फिर कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट? फेवरेट आई लाइक करण कुंद्रा एंड तेजस्वी। दोनों की जो पेयरिंग हुई है घर के अंदर, तेज, यस, तो वो पेयरिंग कितनी ज़्यादा बहुत क्यूट है, वो लोग बहुत क्यूट लग रहे हैं ऐसे। इंस्टाग्राम में क्योंकि क्लिप्स आते रहते हैं एंड मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे फैंस क्लिप्स एडिट करके डालते हैं, जो बहुत क्यूट है। वेल, प्रतीक की वजह से कल जो टास्क रद्द हुआ था उसके बारे में कल मैंने नहीं देखा, अब मैं जाते वक्त देखूंगी इसके। अच्छा, तेजू सर। हाँ, और प्रतीक जी का टास्क रद्द करना आई थिंक इज़ वेरी कॉमन। ओके, वो कर रहे हैं, बट ये दिल का मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब उनको देख के, आई डोंट नो इन पर्सनली ऑब्वियसली, पर दिल के वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तेजू सर करण के कनेक्शन के बारे में आपका हाँ, क्या वही कहना है? दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, होपफुली मतलब आगे जाके उनकी ऐसी बॉन्डिंग कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, ओके, सो इसके अलावा इतना डीपली फॉलो करती हैं बिग बॉस, तो कभी ऐसे कंटेस्टेंट जाने का सोचा है या फिर अगर मौका मिले तो? सोचा, कब का सोच के रखा है कि जब भी मौका मिलेगा मैं पहले मौके में ही जाऊँगी। तो व्यूअर्स का फेस होने का ये फायदा है कि हो सकता है होपफुली अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो आप लोग मुझे बाहर से प्लीज सपोर्ट करिएगा। मुझे बोलिए। तो दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली के क्या प्लान्स है या फिर सिर्फ काम कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं शायद, शूट कर रहे हैं, और अगर बाई चांस अगर ऑफ मिलता है तो घर डेकोरेट करेंगे, क्योंकि आई स्टे अलोन, तो घर वर डेकोरेट करेंगे, और मिठाई तो मैं बना नहीं सकती, तो बाहर से मंगवा। और शो में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स? शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे आ रहे हैं दिवाली को लेके, बहुत सारे धमाकेदार एपिसोड्स आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है देखने में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग अस, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने में। इसके अलावा आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो अभी नहीं, क्योंकि मैं कम्प्लीटली नीमा में ही इन्वॉल्व हूँ, तो अभी मैं वही कर रही हूँ सिर्फ, बाकी लेट्स सी फ्यूचर में क्या है डेस्टिनी में। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। करना तो क्या कहना चाहिए, कैसा रहा आज आप होस्ट कर रहे हैं? इन्हें बुला ही ले, निकालो आटे माइक, आई एम लिसनिंग। तो आज आप होस्ट कर रहे हैं? वोट कर रहा हूँ, होस्ट। हाँ, तो कैसा रहा है, आप बताना चाहेंगे? मैं ना, मुझे कॉल करता है हर्ष या भारती, आ जाना है, मैं पहुँच जाता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने गेम खेला, गीला हुआ, कीचड़ में गंदा हुआ, फिर बोला भाई चलो ना, मतलब हम लोग गुजराती बात करते हैं, चलो थोड़ा एंकरिंग कर ले, ओके, तो मैं वो कर रहा हूँ। अभी वापस बोला लंच के बाद भाई थोड़ा गेम खेलेंगे, ओके मैं चेंज करके आ जाऊँगा। इट्स जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर एंड हैविंग फन। मेरा शो नहीं है, पर मैं मानता हूँ ये मेरा शो है, इसलिए अपनापन करके जो भी वो बोलते मैं करता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है। एंकरिंग की मैंने एक पूरा सेगमेंट, मैंने एक पूरा एपिसोड हर्ष के साथ किया, दूसरा मैंने पूरा भारती के साथ किया, एंड ऐसे ही चलते रहता है। कितने गेम्स खेले आपने? काफ़ी गेम्स खेल लिए, 3 4 5 6, बाय द एंड ऑफ द डे आई विल बी 6 7 गेम तो खेल ही लूँगा। और कितने में जीते आप?
मैं ऑलमोस्ट सब में जीता, एक में शायद नहीं जीता, बाकी सब में जीता हूँ। पर हार जीत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फन, एंजॉयमेंट, एंड उसके लिए तो है मतलब हम बस यही चाहते हैं, स्पेशली हर्षन भारती, कि पेट पकड़ के हंसे जो लोग भी भारतीय टीवी में इंडियन गेम शो देखें। ओके, अगर हम बात करें शादी के बाद पहली दिवाली है तो किस तरह के आप लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताना है। शादी के बाद पहली दिवाली है, सब कुछ पहला पहला है। अच्छा है, आई लाइक कि हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है सेम है, उसे भी इतना पटाखे फोड़ने शौक नहीं, मुझे भी नहीं है। वी आर सिंपल रिलैक्स्ड पीपल, वही है। बस छोटी सी एक वो रहता है कि हम लोग, मैं मेरी नानी के साइड में जाता हूँ, वहाँ पे मिलता हूँ, फिर हम लोग मेरे सिस्टर इन लॉ, उनकी फैमिली, फिर मैं अभी निधि की फैमिली को मिलूंगा। वैसे दिवाली में हम लोग 3-4 जगह पे जाते हैं एंड इवेंचुअली इट्स बहुत कम समय मिलता है, वो भी बिजी रहती है, मैं भी बिजी रहता हूँ। एक ऑफ मिलता है ना, तो साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं और टीवी देखते हैं, वो हमारा बेस्ट टाइम, तो हम लोग वो करेंगे। शो की बात करें, शो भी अच्छा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे शो को? कौन सा शो? ये शो? हाँ, आपका शो, मेरा शो? हाँ, डांस प्लस शो जो है उसके बारे में, हाँ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, मतलब हाउ यू आर डूइंग, अच्छा चल रहा है? डांस प्लस का शूट हो चुका है, विनर अनाउंस हो चुका है, शो खत्म हो चुका है, पर ये न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ जो OTT में है, हॉटस्टार में आ चुका था। पर जैसे कि मेरी माँ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके लिए शो बनता ही नहीं जब तक वो टीवी में नहीं आता। तो स्टार प्लस में आ रहा है 31 अक्टूबर से, प्लीज़ गो एंड वॉच। काफ़ी देर बाद हमारी जो रेमो सर की फैमिली फिर से आ रही है 2 साल के गैप के बाद। प्लीज़ गो एंड गिव अस द सेम लव जो आप तक दे रहे आ रहे हो, एंड ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहो। थैंक यू सो मच। नहीं, एक लास्ट दिवाली विश कर दीजिए प्लीज। मैं सारे करना तो क्या कहना चाहिए, कैसा रहा आज आप होस्ट कर रहे हैं? You are doing host। इन्हें बुला ही ले, निकालो हटे माइक, आई एम लिसनिंग। तो आज आप होस्ट कर रहे हैं, वूट कर रहा हूँ, होस्ट। हाँ, तो कैसा रहा है, तो आप बताना चाहेंगे? मैं ना, मुझे कॉल करता है हर्ष या भारती, आ जाना है, मैं पहुंच जाता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने गेम खेला, गीला हुआ, किचड़ में गंदा हुआ, फिर बोला भाई चलो ना, मतलब हम लोग गुजराती बात करते हैं, चलो थोड़ा एंकरिंग कर ले। आई सेड ओके, तो मैं वो कर रहा हूँ। अभी वापस बोला लंच के बाद भाई थोड़ा गेम खेलेंगे, ओके मैं चेंज करके आ जाऊँगा। इट्स जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर हैविंग फन। मेरा शो नहीं है, पर मैं मानता हूँ ये मेरा शो है, इसलिए अपनापन करके जो भी वो बोलते मैं करता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है। एंकरिंग की मैंने एक पूरा सेगमेंट, मैंने एक पूरा एपिसोड हर्ष के साथ किया, दूसरा मैंने पूरा भारती के साथ किया, एंड ऐसे ही चलते रहता है। कितने गेम्स खेले आपने? काफ़ी गेम्स खेल लिए, 3, 4, 5, 6। बाय द एंड ऑफ द डे आई विल बी 6-7 गेम तो खेल ही लूँगा। और कितने में जीते आप? मैं ऑलमोस्ट सब में जीता, एक में शायद नहीं जीता, बाकी सब में जीता हूँ। पर हार जीत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फन, एंजॉयमेंट, एंड उसके लिए तो है मतलब हम बस यही चाहते हैं, स्पेशली हर्षन भारती, कि पेट पकड़ के हंसे जो लोग भी भारतीय टीवी में इंडियन गेम शो देखें। ओके, अगर हम बात करें शादी के बाद पहली दिवाली है तो किस तरह के आप लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताना है। शादी के बाद पहली दिवाली है, सब कुछ पहला पहला है। अच्छा है, आई लाइक कि हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है सेम है, उसे भी इतना पटाखे फोड़ने शौक नहीं, मुझे भी नहीं है। वी आर सिंपल रिलैक्स्ड पीपल, वही है। बस छोटी सी एक वो रहता है कि हम लोग, मैं मेरी नानी के साइड में जाता हूँ, वहाँ पे मिलता हूँ, फिर हम लोग मेरे सिस्टर इन लॉ, उनकी फैमिली, फिर मैं अभी निधि की फैमिली को मिलूंगा। वैसे दिवाली में हम लोग 3-4 जगह पे जाते हैं एंड इवेंचुअली इट्स बहुत कम समय मिलता है, वो भी बिजी रहती है, मैं भी बिजी रहता हूँ। एक ऑफ मिलता है ना, तो साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं और टीवी देखते हैं, वो हमारा बेस्ट टाइम, तो हम लोग वो करेंगे। शो की बात करें, शो भी अच्छा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे शो को? कौन सा शो? ये शो? हाँ, आपका शो, मेरा शो? हाँ, डांस प्लस शो जो है उसके बारे में, हाँ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, मतलब हाउ यू आर डूइंग, अच्छा चल रहा है? डांस प्लस का शूट हो चुका है, विनर अनाउंस हो चुका है, शो खत्म हो चुका है, पर ये न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ जो OTT में है, हॉटस्टार में आ चुका था। पर जैसे कि मेरी माँ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके लिए शो बनता ही नहीं जब तक वो टीवी में नहीं आता। तो स्टार प्लस में आ रहा है 31 अक्टूबर से, प्लीज़ गो एंड वॉच। काफ़ी देर बाद हमारी जो रेमो सर की फैमिली फिर से आ रही है 2 साल के गैप के बाद। प्लीज़ गो एंड गिव अस द सेम लव जो आप तक दे रहे आ रहे हो, एंड ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहो। थैंक यू सो मच। नहीं, एक लास्ट दिवाली विश कर दीजिए प्लीज। मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ हैप्पी दिवाली, कहना चाहता हूँ हैप्पी दिवाली। एंजॉय लाइफ एंड स्प्रेड स्माइल्स, एंजॉय लाइफ एंड स्प्रेड स्माइल्स। थैंक यू, थैंक यू। सो दिव्या, आज खतरों की टीम तो साथ में थी, वहाँ कहीं ना कहीं आप मिसिंग थी। आज यहाँ पूरा कर लिया, आज खतरों वालों को भी थोड़ा बहुत हमने दिखा दिया, टास्क वास्क करके मजा आ गया।
सो वरुण और आपके बीच में कंपटीशन था या नहीं, लकीली हम दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं आए, वरना अगर आते तो फिर झगड़े हो जाते हैं। मतलब हमने डिसाइड किया हम कॉम्पीट नहीं करेंगे साथ में, बिकॉज हम दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। वेल वरुण के तो सारे फ्रेंड्स थे, कितने दिन से प्लानिंग चल रही है? वरुण के फ्रेंड्स, खतरों के फ्रेंड्स जो थे, मेरे को देख के उनको बड़ी खुशी होती है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली वरुण हैज़ मेड सम फ्रेंड्स जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा हैंग आउट करता है, वरना एक शो के बाद बहुत कम दिखते हैं रियलिटी शो वाले साथ में, बट इन लोग की फ्रेंडशिप सच में दिखती है, तो बड़ा मज़ा आता है और इन लोग की बहुत सीक्रेट्स मुझे पता चलती है वरुण की उनसे। ओके, सो कौन कौन से गेम्स खेले आज? गेम्स हमने मैंने तो 2 ही खेले, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने 2 ही खेले, पर मैं मिस नहीं करना चाहती थी ये, तो इसीलिए मैं आई हूँ। एंड मैंने 2 गेम खेले, उसमें से देखना अभी कौन सी जीती कौन सी हारी, दोनों जीती दोनों हारी। सो दिव्या, बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं? स्टार्टिंग में किया था बिग बॉस फॉलो, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं बिजी हो गई तो नहीं कर पाई, पर मैं वीकेंड का वार फिर भी देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स है, सपोर्ट कर रही हैं? जय, करण, तेजस्वी आई लाइक विशाल, देन निशांत तो अपना है ही, और प्रतीक का तो जो स्ट्रेटजी प्रतीक यार बेचारा आई मीन ही इज लाइक अ ब्रदर, यू नो, वो मतलब लोग मुझे कितनी भी गालियाँ देते कुछ भी बोले, वो मेरे लिए मेरा छोटा भाई है और मैं उसको गाली भी दूंगी, मैं उससे प्यार भी करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। सो दिव्या, आप डूइंग वेल, तारीफ करती है लेकिन फिर भी उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया। वो मैं कह रही हूँ ना, लाइक वो एक ब्रदर सिस्टर वाला फाइट नहीं होता है जो कभी भी ब्रूटल हो सकता है, कितनी भी मार धाड़ हो सकती है बीच में। आई थिंक आई हैव दैट। मेरे असली भाई के साथ मेरे इतने झगड़े नहीं हुए लाइफ में जितने प्रतीक के साथ हो गए। वेल, लास्टली किसको जीतता देखना चाहती हैं आप? That's too soon to ask actually. अभी तो जर्नी बाकी है। दिवाली भी आ रही है, क्या प्लान्स है दिवाली के? दिवाली के प्लान है? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। उठा लो। सो दिव्या, आज खतरों की टीम तो साथ थी, वहाँ कहीं ना कहीं आप मिसिंग थी, आज यहाँ पूरा कर लिया, आज खतरों वालों को भी थोड़ा बहुत हमने दिखा दिया, टास्क वास्क करके मजा आ गया। सो वरुण और आपके बीच में कंपटीशन था या नहीं, लकीली हम दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं आए, वरना अगर आते तो फिर झगड़े हो जाते हैं। मतलब हमने डिसाइड किया हम कॉम्पीट नहीं करेंगे साथ में, बिकॉज हम दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। वेल, वरुण के तो सारे फ्रेंड्स थे, कितने दिन से प्लानिंग चल रही है? वरुण के फ्रेंड्स, खतरों के फ्रेंड्स जो थे, मेरे को देख के उनको बड़ी खुशी होती है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली वरुण हैज़ मेड सम फ्रेंड्स जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा हैंग आउट करता है, वरना एक शो के बाद बहुत कम दिखते हैं रियलिटी शो वाले साथ में, बट इन लोग की फ्रेंडशिप सच में दिखती है, तो बड़ा मज़ा आता है और इन लोग की बहुत सीक्रेट्स मुझे पता चलती है वरुण की उनसे। ओके, सो कौन कौन से गेम्स खेले आज? गेम्स हमने मैंने तो 2 ही खेले, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने 2 ही खेले, पर मैं मिस नहीं करना चाहती थी ये, तो इसीलिए मैं आई हूँ। एंड मैंने 2 गेम खेले, उसमें से देखना अभी कौन सी जीती कौन सी हारी, दोनों जीती दोनों हारी। सो दिव्या, बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं? स्टार्टिंग में किया था बिग बॉस फॉलो, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं बिजी हो गई तो नहीं कर पाई, पर मैं वीकेंड का वार फिर भी देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स है, सपोर्ट कर रही हैं? जय, करण, तेजस्वी आई लाइक विशाल, देन निशांत तो अपना है ही, और प्रतीक का तो जो स्ट्रेटजी प्रतीक यार बेचारा आई मीन ही इज लाइक अ ब्रदर, यू नो, वो मतलब लोग मुझे कितनी भी गालियाँ देते कुछ भी बोले, वो मेरे लिए मेरा छोटा भाई है और मैं उसको गाली भी दूंगी, मैं उससे प्यार भी करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। सो दिव्या, आप डूइंग वेल, तारीफ करती है लेकिन फिर भी उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया। वो मैं कह रही हूँ ना, लाइक वो एक ब्रदर सिस्टर वाला फाइट नहीं होता है जो कभी भी ब्रूटल हो सकता है, कितनी भी मार धाड़ हो सकती है बीच में। आई थिंक आई हैव दैट। मेरे असली भाई के साथ मेरे इतने झगड़े नहीं हुए लाइफ में जितने प्रतीक के साथ हो गए। वेल, लास्टली किसको जीतता देखना चाहती हैं आप? That's too soon to ask actually. अभी तो जर्नी बाकी है। दिवाली भी आ रही है, क्या प्लान्स है दिवाली के? दिवाली के प्लान है? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। उठा लो। घुमा रहे। हाँ जी, तो आराम से बैठो। पैर आ रहा तुम्हारा यार फोटो में, थोड़ा पीछे यार। एंड बहुत लंबे समय बाद मुंबई आई हैं। हाँ जी, 2 साल बाद। जी, सो
सबसे पहले तो बताइए मुंबई आने के बाद में कितना होमली फील कर रही हैं? बहुत होमली. अभी रास्ते खाली हो गए, अभी लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल. और जब अपने अपने घर वापस आते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है. मिस किया मुंबई? बहुत मिस किया, सबसे ज्यादा मिस किया मैंने. ओके, सो बिसाइड्स दैट आज गेम शो के लिए स्पेशली आई हैं हाँ आप, जी. तो बताएं कितनी एक्साइटेड है, क्योंकि भारती है तो फन तो एक्सपेक्ट कर. बहुत ज्यादा ही फन है. मैं उनके साथ पहले खतरा किया था एंड दिस इज द सेकंड गेम शो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. तो मेरे को पता चला कि पानी बहुत ऊपर तक है और मैं एकदम छोटी सी हूँ ना, तो आई एम लाइक मैं डूब ना जाऊँ, बट आई नो हाउ टू स्विम, सो आई होप कि मैं डूबूँ नहीं, बिकॉज कभी किसी का भरोसा नहीं है ना, कभी भी नीचे गिर जाओ. आपका जो टक्कर होने वाला है वो बहुत ही आई नो, इतने फेमस लोग हैं अंदर. मैं बहुत घबरा रही हूँ अंदर से, मैं शेक कर रही हूँ कि ओ माय गॉड इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं मेरे सामने, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. तो दीदी वापसी होने वाली है इंडस्ट्री में. हाँ जी, मेरा हो गया शादी ब्रेक, कोरोना ब्रेक, ऑल डन, नाउ आई एम बैक. कुछ है बहुत जल्द होने वाला है. मैं अभी बता नहीं सकती, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है. एंड आई एम कमिंग बैक टू बॉम्बे फॉर गुड. और मैरिज को कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत इंजॉय भी. लॉन्ग डिस्टेंस, ही इज इन द आर्मी, सो ही इज ऑलवेज अवे, तो उसलिए लॉन्ग डिस्टेंस करवा चौथ भी ऐसे ही गया, सो इट्स ओके. बट आई लव द आर्मी लाइफ एंड आई लव बीइंग मैरिड आल्सो. आई एम वेरी हैप्पी. बिग बॉस फॉलो कर रही हैं? हाँ. तेजस्वी एंड करण कुंद्रा माय फेवरेट्स. और उनकी आई लव इट. आई थिंक अभी सुबह को भी मैं देख रही थी, दे आर वेरी क्यूट टुगेदर. एनी अदर फेवरेट कंटेस्टेंट्स? ये दोनों लाइक फेवरेट. ओके, दिवाली के क्या प्लान्स हैं? दिवाली के कोई प्लान्स नहीं है, बिकॉज माई मॉम जस्ट लॉस्ट हर ब्रदर, सो वी आर वेरी क्वाइट एंड कुछ नहीं कर रहे हैं. बस घर पे आई एम कॉलिंग माई इन लॉज एंड आई एम मेकिंग फूड फॉर देम, बस नथिंग मोर. एक लास्ट में दिवाली विश कर. Okay, so happy Diwali to all of you and please be safe. I know Corona is going, but still just be safe. Keep distance, wear your mask, and that's it. Happy Diwali to all of you. Thank you. नहीं. विशाल, भारती का शो है. भारती के शो में एज अ कॉम्पिटिटर आए हैं, तो कंपटीशन के मूड से आए या फन के? बहुत ज़्यादा. मैं कंपटीशन में तो मैं कॉम्पिटिटिव हूँ बाय नेचर, बट मैं बहुत ज़्यादा फन के मूड में आया हूँ. कौन हार रहा है कौन जीत रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ये फ़र्क पड़ेगा कि हम कितने मज़े कर रहे हैं. मैं पहला गेम खेल चुका हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अब मैं दूसरा गेम खेलने जा रहा हूँ, सो लेट्स सी क्या होता है. कल भीग के बाहर आए थे, क्या हाँ जी. गेम था इसके बारे में बताइए. तो क्योंकि मैं भीग के बाहर आया था तो थोड़ा इस तरफ आ सकते हैं हम, फ्रेम यूज़ कर सकते हैं इस तरफ. आप लोग को दिख ही आ रहेगा कि मैं भीग के आया था, तो वाटर गेम था वो. और मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. थोड़ा मतलब अंदर से थोड़ा सा डर था कि क्या होगा, कौन जीतेगा, बट देखते हैं. अभी मैं आप कुछ रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया. कंपटीशन किस के बीच में था? कंपटीशन मैं और तनिषा एक टीम में थे और सामने वाली टीम में थे हर्ष भैया और दिव्या अग्रवाल. तो काफ़ी टक्कर की कंपटीशन थी हमारे बीच में. एकदम कट टू कट चल रहे थे, नेक टू नेक चल रहे थे. तो आराम से बैठ पैर आ रहा तुम्हारा यार फोटो में. थोड़ा पीछे यार. एंड बहुत लंबे समय बाद मुंबई आई हैं. हाँ जी, 2 साल बाद. तो सबसे पहले तो बताइए मुंबई आने के बाद में कितना होमली फील कर रही हैं? बहुत होमली. अभी रास्ते खाली हो गए, अभी लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल. और जब अपने अपने घर वापस आते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है. मिस किया मुंबई? बहुत मिस किया, सबसे ज्यादा मिस किया मैंने. ओके, सो बिसाइड्स दैट आज गेम शो के लिए स्पेशली आई हैं हाँ आप, जी. तो बताएं कितनी एक्साइटेड है, क्योंकि भारती है तो फन तो एक्सपेक्ट कर. बहुत ज्यादा ही फन है. मैं उनके साथ पहले खतरा किया था एंड दिस इज द सेकंड गेम शो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. तो मेरे को पता चला कि पानी बहुत ऊपर तक है और मैं एकदम छोटी सी हूँ ना, तो आई एम लाइक मैं डूब ना जाऊँ, बट आई नो हाउ टू स्विम, सो आई होप कि मैं डूबूँ नहीं, बिकॉज कभी किसी का भरोसा नहीं है ना, कभी भी नीचे गिर जाओ. आपका जो टक्कर होने वाला है वो बहुत ही आई नो, इतने फेमस लोग हैं अंदर. मैं बहुत घबरा रही हूँ अंदर से, मैं शेक कर रही हूँ कि ओ माय गॉड इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं मेरे सामने, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. तो दीदी वापसी होने वाली है इंडस्ट्री में. हाँ जी, मेरा हो गया शादी ब्रेक, कोरोना ब्रेक, ऑल डन, नाउ आई एम बैक. कुछ है बहुत जल्द होने वाला है.
मैं अभी बता नहीं सकती लेकिन बहुत जल्द होने वाला है एंड आई एम कमिंग बैक टू बॉम्बे फॉर गुड। और मैरिज को कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत इंजॉय भी लॉन्ग डिस्टेंस ही इज इन द आर्मी सो ही इज ऑलवेज अवे तो उसलिए लॉन्ग डिस्टेंस करवा चौथ भी ऐसे ही गया सो इट्स ओके बट आई लव द आर्मी लाइफ एंड आई लव बीइंग मैरिड आल्सो आई एम वेरी हैप्पी। बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? हाँ तेजस्वी एंड करण कुंद्रा माय फेवरेट और उनकी आई लव इट आई थिंक अभी सुबह को भी मैं देख रही थी दे आर वेरी क्यूट टुगेदर। एनी अदर फेवरेट कंटेस्टेंट? ये दोनों लाइक फेवरेट। ओके, दिवाली के क्या प्लान्स हैं? दिवाली के कोई प्लान्स नहीं है बिकॉज माई मॉम जस्ट लॉस्ट हर ब्रदर सो वी आर वेरी क्वाइट एंड कुछ नहीं कर रहे हैं बस घर पे आई एम कॉलिंग माई इन लॉज एंड आई एम मेकिंग फूड फॉर देम बस नथिंग मोर। एक लास्ट में दिवाली विश कर। Okay, so happy Diwali to all of you and please be safe. I know Corona is going, but still just be safe. Keep distance, wear your mask, and that's it. Happy Diwali to all of you. Thank you. नहीं। विशाल भारती का शो है, भारती के शो में एज अ कॉम्पिटिटर आए हैं तो कंपटीशन के मूड से आए या फन के? बहुत ज़्यादा। मैं कंपटीशन में तो मैं कॉम्पिटिटिव हूँ बाय नेचर बट मैं बहुत ज़्यादा फन के मूड में आया हूँ। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये फ़र्क पड़ेगा कि हम कितने मज़े कर रहे हैं। मैं पहला गेम खेल चुका हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं दूसरा गेम खेलने जा रहा हूँ सो लेट्स सी क्या होता है। भीग के बाहर आए थे, क्या हाँ जी। गेम था इसके बारे में बताइए। तो क्योंकि मैं भीग के बाहर आया था तो थोड़ा इस तरफ आ सकते हैं, हम फ्रेम मूव कर सकते हैं इस तरफ। गंदा आप लोग को दिख ही आ रहेगा कि मैं भीग के आया था तो वाटर गेम था वो और मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। थोड़ा मतलब अंदर से थोड़ा सा डर था कि क्या होगा कौन जीतेगा बट देखते हैं अभी। मैं आप कुछ रिवील तो नहीं कर सकता लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कंपटीशन किस के बीच में था? कंपटीशन मैं और तनिषा एक टीम में थे और सामने वाली टीम में थे हर्ष भैया और दिव्या अग्रवाल। तो काफ़ी टक्कर की कंपटीशन थी हमारे बीच में, एकदम कट टू कट चल रहे थे, नेक टू नेक चल रहे थे बट मज़ा आया। अब आगे नहीं बोलूँगा। ओके, दिवाली आ रही है, क्या प्लान है इस दिवाली? मेरी दिवाली का प्लान तो ये है कि मैं अभी 1-2 दिन में दुबई फ्लाई करने वाला हूँ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शो के शूट के लिए मेरा फर्स्ट शेड्यूल है वहाँ पे, तो मैं कुछ 10 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो दिवाली तो मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ नहीं मना पाऊँगा बट ये दिवाली मेरी वर्किंग दिवाली रहेगी। ओके, सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? सो जैसे एक वेब शो है जो मैं अभी कर रहा हूँ, उसके अभी मेरा एक स्नैपचैट वेब शो रिलीज़ हुआ है रेट्रो रिवाइंड करके। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिए, उसका पहला एपिसोड आउट हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें, 6 म्यूजिक वीडियोस लाइंड अप है तो या ओके। लास्ट दिवाली। सो हाय गाइस हूएवर वाचिंग दिस वीडियो, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। ज़्यादा पटाखे मत फोड़ना, घर पे रहना, मिठाई खाओ, प्यार बांटो। लव यू। थैंक यू। भारती और हर्ष के शो के लिए आए हो, इंडियन गेम शो, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड जेन्युइनली मुझे जब भारती का पर्सनल इनविटेशन आया इस शो के लिए, मैंने कुछ पूछा भी नहीं डिटेल में क्या है। आई जस्ट लव बोथ ऑफ देम, जो भी वो काम कर रहे हैं बहुत ही लाइक अमेजिंग कर रहे हैं उनके जोन में वो लोग एंड बहुत ही एंटरटेनिंग है एंड बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो मुझे डेफिनेटली इनके साथ करना था एंड जब यहाँ पर आके देखा तब पता चला ये तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हो रहा है एंड स्पेशली यूट्यूब के लिए इन्होंने इतना ग्रैंड स्केल पे किया है। तो ऑफकोर्स ये जब इसका आउटपुट आएगा तब बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा, यहाँ देखने में बहुत मज़ा आएगा। वेल, हम देख रहे हैं आप अपने बेबी के साथ आए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अटैच है आपसे। तो ऐसे में किस तरह से शूट करने वाले हैं? मैं एक्चुअली इसकी मॉम अभी है नहीं यहाँ पर एंड वो मेरी ड्यूटी है, पिछले 6 दिन से मैं उसको कैरी कर रहा हूँ एंड मज़ा आ रहा है। लाइक डैड का जो फादरहुड है वो निभा रहा हूँ मैं एंड अच्छा लग रहा है। एंड अभी अंदर पहली बार मैं एक्सपीरियंस करने वाला अपने बेबी को सेट पे लेके जाके, पता नहीं वो मुझे करने देगा कि नहीं करने देगा बट कर लेंगे जो भी है। दिवाली तो मेरी स्पेशली प्लान है सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली के साथ एंड मेरे जो टीममेट्स हैं उनके साथ। सो बस वही एज यूजुअल मेरा यही हर साल रहता है, दिवाली जो होता है घर पर होता है, तो इस साल भी वही है। मैम मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ मैम। मेरा वाला कैमरा चलो जल्दी जल्दी से करते हैं। मैडम शो के लिए आई है, एक तरह से ये रीयूनियन हम कह सकते हैं। शिविन के साथ में आज लंबे समय के बाद फिर से एक यस आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम ऑन स्क्रीन हम लोग आने वाले हैं। यस सो जब ये पता लगा तो कितनी एक्साइटेड हुई आप और क्या कुछ प्लानिंग करके आई हैं? एक्साइटेड when I got to know about this, मेरी मम्मा ने तो सीधा फ़ोन लगा दिया शिवन का, and she was like, are you coming and we were like so happy
to be a part of Harsh and Bharti's show, and I really want to say that कि इनका show और भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुए, and it's really great to be a part of this fun show. कितना कौन-कौन से गेम खेलने वाली हैं और हमने अभी तक देखा है सब भीग के बाहर आ रहे हैं, तो आप तैयार हैं भीगने के लिए? मैं अभी भीग के जाके फिर से रेडी होके अभी आई हूँ, so I don't know अभी मुझे अंदर और कितना भीगना है, so उसके लिए अभी मुझे पता नहीं है कि अंदर और क्या फन गेम्स होने वाली हैं, बट आई नो जो भी होगा बहुत एक्साइटिंग होगा. So किसके साथ में कंपटीशन अभी तक के रहा है? अभी तक कंपटीशन हर्ष भाई एंड दिव्यांका जी के साथ मेरा हुआ भी कंपटीशन, बट वी वॉन. ये बताना नहीं था क्या मुझे, बट उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा शो, एंड भारती टीवी सब्सक्राइब कीजिए, एंड उस पे आप सब कुछ देख सकते हैं, ऑल द मस्ती एंड फन. ओके, सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? कमिंग सून, दैट्स ऑल. वेल, हीरो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस शो? इट वॉज अ ग्रेट जर्नी. मैं शो में काफ़ी लेट आई थी, बट इतने कम समय में मैंने बहुत ही प्यारा परिवार बनाया उस सेट पर, एंड आई रियली मिस एवरीबडी. बट ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया है तो हम हो गए, बस बंद हो गया तो ख़त्म हो गया सब. हम दोबारा मिलते रहेंगे सब, एंड एक परिवार है, तो आई होप सब अच्छा काम करें, एंड सब बहुत सक्सेसफुल हो. वेल, शिविन के साथ में तो आप फ्रेंड है ही हैं, पर अभिषेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उतनी फ्रेंडशिप? अभिषेक इज़ ऑल्सो वेरी फन लविंग, एंड ऑन सेट तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, बिकॉज मैं 8 साल से अभिषेक एंड सिद्धार्थ को जानती हूँ. सो दे बोथ वर, सिद्धार्थ चलो बाद में आए थे, बट अभिषेक के साथ आई हैव अ रियली गुड फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड. सो या, इट वाज बिग बॉस फॉलो कर रही हैं? नो, आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस. आई एम सो सॉरी गाइस. ओके, सो दिवाली आ रही है, क्या प्लान्स है इस दिवाली के? इस दिवाली के प्लान्स है, आई एम गोना सेलिब्रेट माय दिवाली विद माय फैमिली, विद माय मदर, and that's it. I don't like crackers because I'm an animal lover, so I personally don't like crackers, and I think you also should not burst crackers because environment खराब होता है, plus कोविड का भी टाइम चल रहा है, so I hope you all understand. So don't burst crackers, but enjoy with your family, and खाना पीना खाओ, दिए जलाओ, लाइट्स के लिए तो जानी जाती है दिवाली. सो एंजॉय योरसेल्फ, एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस. थैंक यू सो मच. मैम बहुत खुश लग रही है, बहुत खुश लग रही है आज. हैप्पी दिवाली आप सब. हैप्पी दिवाली. बहुत रिस्क है बाबा. थैंक यू मैम. बाय बाय शेर खान. तुमको इधर जगह दे रहा नहीं. बाय रिचा मैम. बाय मैम. बाय बाय. हैप्पी दिवाली मैम. ऑर्डरली ऑर्डर दे, वो चाहते तो आज ऑर्डर दें, कल रेटिंग करें. चूँकि दिवाली की छुट्टियां हैं, उन्होंने कॉपरेट किए, पहले बोल दिए, तो उसके हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से आज हो जाएगा. एंड विल ट्राई लेवल बेस्ट टू डू इट टुडे. सर, वकील के साथ आप अच्छे पिता भी हैं और उनसे मिलने मुलाकात काफी दिन से 20-25 दिन से सर जेल में बंद शाहरुख खान के लीगल टीम के साथ अच्छी बात हो गई है.
पहले हम बेल से बाहर तो निकल जाए, सारी खुशियाँ बाद में कर देंगे। सारी बाहर आके बात करने वाले लोगों से उनको अलाउ नहीं है बात करने। मेरे तरफ से तो कोई मना नहीं है, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, सबसे बात करेंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले उनके जो सुकून से प्रोसेस अभी तक क्या क्या होगा? हाँ जी, आज प्रोसेस क्या क्या हाईकोर्ट के बाद प्रोसेस पहले हाईकोर्ट से ऑर्डर मिला है, डाउनलोड होना है, सेशन कोर्ट में अप्लाई करना है, अप्लाई करके फिर यहाँ पर पेपर आना है 5:30 के पहले। बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। मैंने उसको बोला 90% बोलता नहीं 100% पापा गेट मी आउट। 5 दिन से हो नहीं सका, एंजाइटी है, किसे पसंद है जेल में जाना, और जब ये यहाँ तक बात आ गई है तो विल ट्राई लेवल बेस्ट। इसलिए आज मैं खुद पर्सनली आया उसे दिलासा देने के लिए कि बच्चा आज इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो जेल के अंदर पहले जो चीज़ होती है कैद होती है, कैद की अंदर किसने पता है? आज 5 दिन से ये था, बेल में आज ये नहीं होगी, कल ये नहीं होगी। जेल के अंदर टीवी भी है, उनको सारी न्यूज़ मिलती थी। आज वही उम्मीद से बच्चा बैठता है, आज उम्मीद से था, पूरे देश उसके लिए उम्मीद में रहे, आर्यन के लिए, अरबाज के लिए। बाद में कुछ बताया आर्यन के बारे में, आर्यन किस प्रकार से पकड़ गया जब उसको पता चला? आर्यन भी उसी स्थिति में है, आप उसके बारे में तो कमेंट कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि आपके साथ तो भी अरबाज ने कुछ बोला कि आर्यन कितना खुश है? बहुत कुछ है, कोई कुछ नहीं है। अंदर जाना मासूम बच्चों को मेल मिलने के बाद में तो खुशी है ही, इसलिए तो वेट कर रहे हैं कि भाई आज क्या जी, आज भी मैं आया, इसका मतलब यही था कि भाई आज क्या जी कहना वही सर आर के मैम गेट नंबर 1, गेट 1 से भी जाऊँगा चलेगा? चल जी मैम वापस थोड़ा लेट हो गया क्या? अरे आराम से मैम 2 से जा रहे हो क्या? 2 से जा रहे हो? बाय मैम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप डाले थे ना पहली बार साइकिल से कब गिरी क्या वो सब? आप बोले थे निशान अभी तक है। यहाँ पे सेंटर लोग करें सब लोग सेंटर लोग करें सर सेंटर लोग गाइस एक सीन लेते मीडिया नहीं फिर चले चलो क्या कर रहे हैं भाई मैं यहाँ से ले लूँगा नीचे से सीरियसली लगे तुम्हें लगा तुम बाहर अरे एक में हम लोग वेलकम योर स्टार एक सेकंड आई जस्ट वापस बोल रही हूँ जनता में रख दे इधर लो वाला ओके सो पहले तो एनिवर्सरी है, बोला आप आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आज और रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये स्टोर मेरा बहुत फेमिलियर है, ये मेरे घर का स्टोर है, ये भी मेरे घर की ही है, तो ये फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि किसी और की कोई चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपनी ही चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो आप देखेंगे बेसिकली माय मॉम आई माई सेल्फ, जब भी मम्मा को कुछ लेना होता है तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मेरी सिस्टर को कुछ लेना होता है यहाँ पे लेके आता हूँ। सो इट्स लाइक आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की वैरायटी मिलेंगी जो रश्मि ने खुद डिज़ाइन की हैं, और बहुत जल्दी हम लोग और भी कुछ सरप्राइजेज आपके लिए लेके आ रहे हैं, कुछ बहुत सारे खुलासे और भी होने वाले हैं जिसको मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, मेरी तरफ देख ली मुझे। रश्मि आप क्या कहना चाहेंगी पल के साथ अपने रिलेशन के बारे में?
बस पल के साथ पल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम फैमिली फ्रेंड हैं, हमारे घर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आंटी को मैं बहुत अच्छी तरीके से मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं हमारे रिलेशन फैमिली वाले। तो ये स्टोर भी उनका है, उनका घर भी मेरा है, मेरा घर उनका है, तो हमारे रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती है, फैमिली दोस्ती है और वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी, उसमें हमारे कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। फ्यूचर में कभी हमें मेन कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, लाइक जिससे हेल्प हो सके? देखने को मिला भी है पहले, मैंने पहना है। हाँ बताओ। लास्ट मुझे याद नहीं है वो अवार्ड फंक्शन शायद गोल्ड था, मुझे याद नहीं कौन सा था, जी था तो मैंने डिजाइन करके दिया था। मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उन्होंने डिजाइन किया था, तो शी इज लकी फॉर मी। वेल आज फेस्टिवल सीजन है, आज किसके लिए शॉप करने का इरादा करके आए हैं या कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे? आज मैं आप सबके लिए शॉप करूँगा, आप पसंद कर लीजिए। ओके सो दिवाली, जैसे कि मैंने कहा फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही है, क्या प्लान्स है आपके इस दिवाली के? दिवाली पे प्लान्स तो कुछ भी नहीं है अभी, बट मैं बस यही चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें, कम पटाखे जलाएं, इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, और बच्चे भी मतलब डॉग्स भी परेशान होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम ये सारी चीज़ें हो, कम पोल्यूशन हो और खुश रहिए, मीठा खाइए। मैं नहीं खा सकता हूँ, कीटो पे हूँ। वेल पॉल ने कहा कि कुछ बड़ा धमाकेदार सामने आने वाला है, कुछ आइडिया देना चाहेंगी? पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत। यस, थोड़ा बहुत हम बहुत जल्दी एक अदर ब्रांड लॉन्च करेंगे एंड आगे आपको देखने को मिलेगा कुछ बहुत बड़ा, सीरियस, बहुत सरप्राइजिंग, तो हम चाहेंगे तब सबको बताएं। बहुत अभी वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, पर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप अपने शेयर करना चाहे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से नहीं मतलब एक गैप हो गया है। जी जी, अभी तो वो सिर्फ हमारे शॉप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं, तो हम चाहते हैं सिर्फ हमारे शॉप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो आप लोग हमारे साथ, और वो खुशी यू नो दैट सेलिब्रेट करो हमारे साथ, खुश हो, खाओ पियो, कपड़े खरीदो। लास्टली फैंस को क्या दिवाली की विश करना चाहेंगे? यही विश करना चाहेंगे कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपने परिवार को समय दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, और इस इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में मैं चाहता हूँ कि आप अपने उन लोगों के साथ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं ज़िंदगी में, उनको वक्त दें, मॉम, डैड। यस। पर आपका आज हीरोइक लुक एकदम डिफरेंट कुछ देखने को मिल रहा है विदाउट बियर्ड। आप कितने कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपको बियर्ड के साथ ही हम देखते हैं ज़्यादातर? हाँ, ये आप लोग बताओ। नहीं मैंने ऐसे कुछ इंटेंशनली नहीं किया, हाँ, बट जब हो जाता है, जो बाल बढ़ जाते हैं तो आगे आ जाते हैं, तो वो लुक चेंज हो जाता है, तो ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं है, बट हाँ, आई एम लविंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू ये ट्रैक कोट किसके अरे तू ये गाय के लिए ले गया ये बोझा या गिर रहा है, पकड़, किसी के पैर पे गिरेगा। ये तो थोड़ा यहाँ पर डन हो जाए। हो गया गाइस, थैंक यू। ये छपेगा, ये हम दो हमारे नहीं की बात है बस। तुलिका इसलिए आवाज लगा। थैंक यू। गाना मत लगाओ। कांग्रेचुलेशन तब से बजा है ना? कांग्रेचुलेशन नहीं लगाना है? नहीं, लेकिन फिर हम लोग डालेंगे तो हम लोग कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा ओके, लगाओ थोड़ा सा चेंज चलो तो क्या चला है? काट दिया जाए। बहुत बढ़िया, आप ये कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।